पुरानी कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में यह बात पूरी तरीके से फिट बैठती हुई नजर आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जमकर तारीफ की है। Said what we all know is true, which is that if President Obama pulled the tariffs that Trump is now putting in place, तो आज यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इंडिया के लिए एक बड़ी खबर, एक बड़ी खुशखबरी आ गई है जी। ट्रंप के खुद के लोग उन्होंने ओपनली पैगाम दे दिया ट्रंप सरकार को कि इंडिया को एनिमी मत बनाओ, इंडिया हमारा बेस्ट न्यूट्रल अलाय है साउथ एशिया के अंदर। We look out at the world in 2025, we see a global stage that's more complex, more connected, and more competitive than ever before. And in the middle of that stage, we see two great democracies. The United States of America and the Republic of India, both nations proud, both nations diverse, both nations with dreams as big as the world itself. Now, folks might be asking, why is India standing up to the United States? Why now? Why here? Well, the answer isn't about hostility or rivalry for rivalry's sake. It's about maturity. It's about a nation that has grown in confidence, in capability, and in conviction. For decades, India's economic rise has been steady and determined. It's become a hub of innovation, a global supplier of technology, pharmaceuticals, and talent. And when a nation reaches that point, when it can feed its people, educate its youth, launch its satellites into orbit, it begins to see itself not as a follower in the world order, but as a shaper of it. There's also a matter of geography and history. India sits at the heart of Asia, surrounded by opportunities and challenges that the United States can't fully experience from across the ocean. That means when India speaks up about regional security, trade routes, or the rules of technology and energy, it speaks with the authority of one who lives in the neighborhood. But let's be clear. Standing up doesn't mean walking away. It means engaging on equal terms. It means saying, we respect you, but we will chart our own course. And in a healthy international community, that's a good thing. It forces all of us. Thank you. आर्मी सतह पे बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। अभी अभी मैंने ये खबर पढ़ी है और आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं लाइव आने लगा था, एक क्लिप मेरी नजरों से गुजरा और जो मैं बड़ी खबर आपके गोश गुजार करने जा रहा था, उससे भी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। आर्मी सतह पे हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। if Obama did this, the right would be saying, this is India's growing economic strength and self-reliance in 2025 are not sudden phenomena. They are the result of decades of calculated policy, societal transformation, and resilience in the face of global pressures. To understand why this economic rise has translated into greater independence from the United States, it's necessary to look at how India's economic journey has evolved, how its domestic capabilities have matured, and how global economic trends have shifted the balance of power. आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, खास तौर पे रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया। That can sustain itself financially is far less likely to be swayed by the promise or withdrawal of foreign funds. A key element of India's economic resilience is its diversification of trade and investment sources. Instead of relying predominantly on the United States and Western markets, India has cultivated deep economic ties with Southeast Asia, Africa, the Middle East, and Latin America. Energy deals with Gulf nations, technology collaborations with East Asia, and agricultural exports to African markets have lessened the risk of economic dependency on any single country. राना कैसर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कहा जा रहा है कि ये जो अनप्रिडिक्टेबल हैं और कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन तगड़ा मुकाबला है, दोनों ही लफ्जी गोलाबारी भी एक दूसरे पर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इनका जो मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाला। ठीक हो गया, तो इसी से आप देखिए
इंडिया कोई एक छोटा कंट्री नहीं है। आप गूगल सारा वहाँ से हैंडल कर रहे हैं, सही बात है। ठीक हो गया। आप टाटा एक कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी एक अच्छी खासी चलने वाली कंपनी, ठीक हो गया। आपका टेस्ला, आपका एप्पल सारा वहाँ पे जनरेट हो रहा है। और जिस दौरान आलमी सफबंदी हो रही है, पाकिस्तान को जर्नैलों ने अपनी बांदी बनाया हुआ है, हमें अपना गुलाम बनाया हुआ है। ना हम तरक्की कर सकते हैं, ना अक़वाम आलम में कोई मकाम हासिल कर सकते हैं। मैं आपको इन दोनों डेवलपमेंट से आगाह करूंगा और आप खुद तस्लीम करेंगे कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं जिनके पाकिस्तान पे बड़े गहरे असरात होंगे। 3 साल और 3 महीने पड़े हुए हैं, तो ट्रंप से बहुत कुछ चाहिए, और जैसे ही ट्रंप जाएगा तो शायद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएं। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया इज इसेंशियल और क्रिटिकल पार्टनर है सप्लाई चेन में, क्योंकि सारी की सारी जो डेमोक्रेटिक दौर में जो सप्लाई चेन थी उसको कन्वर्ट किया गया था इंडिया में। अमेरिका ठीक हो गया। और इंडिया अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से तो बहुत बड़ा एक कंट्री है, ठीक हो गया, जिसका अमेरिका को HBA के अमेरिका की काफ़ी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंडिया में आती हैं, ठीक है। अगर अमेरिका इस पे सेंक्शंस लगाता है या टैरिफ अप्लाई करता है इंडियंस प्रोडक्ट पे, तो ऑब्वियसली इंडियंस फिर मोदी भी उस पर अप्लाई करेगा। तो ये होगा कि अमेरिका जो है वो अगेन स्टैंड अलोन हो जाएगा, क्योंकि चाइना और इंडिया के सेम बॉर्डर्स हैं। अगर वो इकोनॉमी में फ्री, ये ट्रम्प कर क्या रहा है? ट्रम्प बस यही चाह रहा है कि वो अपना मुल्क को अगेन ठीक करें, बट लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ है ना, वो तो बिजनेसमैन बनने की ट्राई कर रहे हैं, नो डाउट वो है। बट ये कह सकते हैं कि जब भी आप ये टैरिफ और सेंक्शंस की तरफ जाएंगे ना, तो आप अपने अगेंस्ट किसी कहता है कि व्हाई दिस फ्रेंड शोरिंग व्हेन अमेरिका नीड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रम्प का प्रॉब्लम ये है, ये जो लोग हैं वो कहते हैं फ्रेंड शोरिंग करो, नियर शोरिंग, जो कि बेसिकली उस वक्त जैक सुलिवन और ये सारे लोग करते थे। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जिनकी वजह से चर्चा तेज हो जाती है, और हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया था। दरअसल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओबामा से जुड़ा एक AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया था, जिसमें ओबामा को गिरफ्तार होते हुए दिखाया गया था। इस पर अमेरिकी मीडिया और लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और ट्रंप की जमकर आलोचना हुई। कई विशेषज्ञों ने इसे मानसिक संतुलन की कमी तक कह दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद बराक ओबामा ने भारत पर बयान दिया, जिसने भारत की छवि को और भी मजबूत कर दिया। एक इंटरव्यू में जब उनसे भारत की नीतियों और अमेरिका भारत संबंधों को लेकर सवाल पूछा गया, तो ओबामा ने साफ शब्दों में कहा कि भारत अपनी राह खुद तय करता है और एशिया का दिल है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि वह केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसने यूरोप, यूरेशिया और एशिया तक अपने व्यापारिक रास्ते खोल रखे हैं। ओबामा का यह बयान सीधे तौर पर भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत केवल कृषि या एक ही क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने विभिन्न क्षेत्रों में अपने लिए बड़े बाजार तलाश लिए हैं। यही वजह है कि भारत के सामने आज किसी एक देश की नीतियां या दबाव कोई खास मायने नहीं रखते। ओबामा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप अक्सर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं और कभी-कभी उसे कमजोर बताने से भी पीछे नहीं हटे। लेकिन ओबामा ने साफ कर दिया कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और अमेरिका समेत पूरी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है। यह बयान कहीं ना कहीं ट्रंप की आलोचना जैसा ही माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में भारत की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए थे। ओबामा ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे, उसकी स्वतंत्र विदेश नीति और बहुपक्षीय रिश्तों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी सिर्फ एक धुरी पर टिककर राजनीति नहीं की, बल्कि हमेशा वैश्विक मंच पर संतुलन बनाए रखा है। इस तरह की बातें न केवल भारत की विदेश नीति की सफलता दिखाती हैं, बल्कि यह भी साबित करती हैं कि भारत अब विश्व राजनीति का एक अहम केंद्र बन चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अमेरिका की राजनीति में ओबामा के इस बयान का क्या असर पड़ता है और ट्रंप किस तरह इसका जवाब देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ओबामा का यह बयान भारत की साख को और ऊंचा करता है, या फिर यह सिर्फ अमेरिकी राजनीति की खींचतान का हिस्सा है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।